in a written form in an academic formal way. To do that, to express your ideas about a certain topic clearly and in a coherent way, you need to have certain skills that that are important for everyone who aspires to write an essay. Those skills are basically related to language. If you know the language, for example, if you are going to write an essay in English or Urdu, for that matter, Punjabi, if you like, the obviously basic requirement is to have the ability to comprehend something in the written form. So, अगर आपकी comprehension in the English language is clear, तो इसका मतलब है कि आप written form में भी जब कोई अपने ideas को express करेंगे, you will have that ability. तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं close reading. Close reading is something which comes after a lot of practice, and usually it is a skill which helps you to guess appropriate word if it is missing in a text. अब मिसाल है, आपके सामने कोई टेक्स्ट आता है, उसमें कोई एक दो चीजें मिटी हुई हैं, कोई एक दो वर्ड, 3-4 वर्ड किसी एक पैराग्राफ में मिसिंग है फॉर एग्जांपल, तो आप के अंदर अगर क्लोज रीडिंग की एबिलिटी है तो यू वुड बी एबल टू फिल दैट वर्ड फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम गेसिंग. तो ये एबिलिटी जो है किसी भी शख्स में जरूरी है कि अगर ये है इस लेवल तक लैंग्वेज को आप हैंडल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है यू कैन आल्सो राइट अ गुड एसे. फिर एनालिटिकल स्किल्स जिन्हें कहा जाता है, एनालिसिस करना किसी चीज का, एनालाइज समथिंग इन अ मीनिंगफुल वे, in a way that the person who is reading what you have written can see your analytical skills in analyzing a certain perspective, in analyzing a certain point of view. Then, in addition to that, you may also require an ability to compare and contrast facts and figures. Then if you have to write a persuasive argumentative essay, you may also require that persuasive ability, the writing persuasion through writing would be something that would help you write a well-structured essay. Then your essay must not have anything irrelevant, must not have anything which is not relevant to the topic. इस तरह की कोई चीज आपके essay में नहीं होनी चाहिए. उसको concise होना चाहिए, to the point होना चाहिए. Conciseness means it should be to the point and it should not waver here or there. बातें करते हुए, जैसे लेक्चर लेते हुए अक्सर टीचर कोई एक पॉइंट आता है और उसमें उसको डाइवर्ट हो जाते हैं, डिवर्जन में चले जाते हैं और फिर वो बात कहीं से कहीं चली जाती है. इस तरह का जो एटीट्यूड है ये ऐसे के अंदर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता और हमको कोशिश करना होती है कि हम कंसाइज तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिससे पढ़ने वाला जो है वो उसको लगे कि हम फोकस्ड है सब कुछ. तो कंसाइजनेस होना बहुत जरूरी है. एंड ऑब्वियसली अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मैं बोलते हुए क्लियर नहीं हूं, सबसे पहले तो मेरी जैसे आवाज अगर क्लियर ना हो, फिर जो मैं कह रहा हूं उसमें क्लैरिटी ना हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. बिल्कुल इसी तरह रिटन एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे लिखते हुए हमको एक खास एक्सप्रेशन की क्लैरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है. एंड देन द एबिलिटी टू एक्सपोज समथिंग. एक्सपोज करना, एक्सपोज वर्ब है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. और एक्सपोज करना एक तो है कि किसी को एक्सपोज कर दिया, जो उसने अपना सहाफियों ने जो था वो फलां लीडर को एक्सपोज कर दिया. एक मतलब ये होता है कि उसको खोल के सामने रख दिया, उसकी जो असलियत थी वो दिखा दी. तो आपके अंदर भी एक्सपोजिशन की, किसी फैक्ट को जब आप एक्सपोजिटरी फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं, तो उसको लिखते हुए आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड हैव दैट एबिलिटी to be able to expose something
in an effective way. So these are a few skills that you may all aspire to have, and those, I'll repeat, are the ability to read closely, and then ability to compare and contrast, analyze, persuade, and be very concise, clear, and at the same time have the ability to expose something, show something, delineate something, make a pen picture of something, expose karna, in a way that is interesting for the reader to continue reading your essay. सो एसे का मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है उसका उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि यू शुड नो कि आपका जो टॉपिक है उसको कितने क्लियरली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी डायरेक्शन क्या होगी आर्गुमेंट की, आपने कहां से बात को स्टार्ट करना है, कहां पे बात को खत्म करना है। आज का लेक्चर है, फॉर एग्जांपल इसी की मिसाल लीजिए, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी आपको, व्हाट इज एसे राइटिंग, उसकी स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं। वी विल मूव ऑन टू देन द वेरियस टाइप्स ऑफ एसे दैट यू मे बी राइटिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग, व्हाइल प्रिपेयरिंग एसे राइटिंग। सो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सारी चीजों को। सो इट मीन्स I will have a beginning, a middle, and an end of today's lecture already present in my mind. So, same way when you are writing an essay, ऐसा नहीं है कि आपने अफसाना लिखना शुरू किया है, नहीं पता कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा। You should know where you are going to start, how you are going to develop your argument, which purpose is it going to serve, and which direction you are going to take in terms of your direction of argument. कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे अपने आर्गुमेंट को कल्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। सो तो इसका मतलब ये है कि आपकी वॉन्डरिंग थॉट्स जो हैं वो इसके ऐसे का हिस्सा नहीं हो सकती। आपको मेन पर्पस को हमेशा फोकस में रखना है और तभी आप एक अच्छा ऐसे जो है, इंटरेस्टिंग ऐसे जो है वो लिख पाएंगे। So after this small introduction, we move on to the various types of essay that that usually are there in the CSS examination or any for that matter, even PCS, PMS examinations. Basically, you have 4 types of essays. इससे ज्यादा भी हैं, बुक्स में आपको मिलेंगे बहुत से टाइटल्स के साथ, लेकिन जनरली दीज आर द 4 मेजर टाइप्स जो कि आपके सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिन पे फोकस करना है। सो दीज आर द 4 टाइप्स। जैसे एक्सपोजिशन अभी लफ्ज यूज किया था, तो एक्सपोजिटरी एसेज हैं और आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं और नरेटिव एसेज। सो what is an expository essay? It's a type of essay in which you need to investigate or evaluate and provide evidence and then expound an idea. किसी भी idea को expose करना, जाहिर है उससे पहले आप उसको सोचेंगे, उसके बारे में investigate करेंगे और फिर evaluate करेंगे उसको, एविडेंस को जो आपके पास है, जो उसको सपोर्ट करने के लिए, आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, और फिर एक्सपाउंड करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और एक आर्गुमेंट डेवलप करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट, जिसको आप अपने एक उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी बनी हुई थीसिस स्टेटमेंट हो। तो एक्सपोजिटरी एसे जो है, इट रिक्वायर्स अ वेरी क्लियरली थॉट आउट थीसिस स्टेटमेंट। नाउ अ थीसिस स्टेटमेंट is something which comes usually in the beginning, in the introduction part of the paragraph, and when we go to writing paragraphs, हमारा जो पूरा ये 4, 5, 6 लेक्चर्स की जो सीरीज है, उसमें हम पहले तो जनरल आज
इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वी विल लुक एट विल फोकस एट राइटिंग स्पेसिफिकली वेरियस पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे डेवलप करने हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या चीजें ख्याल रखनी है, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट आएगी, क्या कैसे लिखी जाती है. तो विल in more detail, we'll practice, not only practice, we'll see how effective thesis statements can be written. तो आर्गुमेंट आपने डेवलप करना है बेसिकली ऐसे थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू, और उसके लिए आपको कंपैरिजन और कंट्रास्ट का की टेक्निक यूज करना पड़ सकती है. यू मे रिक्वायर टू डिफाइन अ फ्यू टर्म्स, डेफिनेशन देनी पड़ती है. मिसाल है कोविड-19 के ऊपर कुछ है, तो व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज कोविड-19. सिमिलरली, एंड इट्स इफ इट्स अ पैंडेमिक, तो व्हाट इज पैंडेमिक बेसिकली. इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ है, तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया और ग्लोबल वार्मिंग पे शुरू हो गए. एक साइंटिफिक, एक कंप्लीट, एक थरो डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए. तो डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स इनिशियली इंट्रोडक्शन में आपको जरूरत होती है आर्गुमेंट डेवलप करने के लिए, वो एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स के थ्रू, एनालिसिस, कॉज और इफेक्ट के थ्रू यू राइट एन एसे. एंड एन एसे इज written in third person. It is mostly written in third person. You do not generally, the writer does not use personal pronoun like I or me or we. We एक pronoun है, plural personal pronoun, जो एक तो we, अगर दो चार लोग हैं तो वो अपने लिए कहेंगे कि we are waiting for someone. लेकिन एक हम general as a nation कहते हैं कि we got independence 70 years ago, but still we are. Now this we is not personal, ये general है, तो ये यूज किया जा सकता है. अदरवाइज जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पर्सनल आई वाला, वो अवॉइड किया जाता है. नहीं, अनलेस यू आर राइटिंग अ लिटरेरी एसे इन विच योर पर्सनल इवैल्यूएशन हैज बीन आस्क्ड, आपकी जाती फीलिंग्स, पर्सनल वो राय आपसे पूछी जाए, तो देन यू मे ऐड, यू मे यूज द फर्स्ट पर्सन. अदरवाइज essays are mostly written in the third person. अभी एग्जाम्पल्स देखिए, टॉपिक्स हैं कुछ. देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस, एंड ग्लोबल वार्मिंग causes and consequences. Democracy and illiteracy do not move together. So ये मैंने दिखाया आपको एग्जाम्पल्स टाइटल एसेस के, बताने के लिए कि देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करना आपको आना चाहिए. व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यू शुड बी एबल टू डिफाइन दैट. सिमिलरली, व्हाट इज इलिटरेसी. ठीक है, एक ये सारे दिखाने का मतलब ये है. और ये उसके अलावा क्या है, दीज आर ऑल एक्सपोजिटरी टाइप्स ऑफ एसेस. इसमें आप एक्सपोज करेंगे, बताएंगे कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस. तो इसको, इस अगर आप इस आर्गुमेंट को लेके चलना है कि इट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस, यू मे एग्री और डिसएग्री विद इट, बट एनीवे, इफ यू वांट टू develop your argument in favor of this topic, you're not going against it, that there has been more problems than there have been solutions. तो फिर आपको जो है वो एक्सपोज करना है, दिखाना है, बताना है कि किस तरह प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं और कैसे सॉल्यूशंस कम हैं. इसी तरह जब आप ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस करेंगे, तो आप ग्लोबल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसके कॉजेज क्या हैं बताएंगे ना, आप एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके नताइज क्या हैं, ये भी आप बताएंगे. सो एक्सपोजिशन इज बेसिकली explaining, showing, in order to develop the reader's information. Usko you'll be adding to the information. Okay, here is
few questions मैं साथ साथ उनको भी I'm looking at those and I'll keep answering them simultaneously. There's a question that expository essays are in third person or all essays. As I said, except for the literary essays in which you may be required to answer, give personal opinions, rest all essays must be written in third person. फिर एक और सवाल है, so this type of essay has no right or wrong answer. It depends on how well we build the argument and whether we are able to convince the examiner. मुस्तफ़ा इमरान का ये सवाल है. Definitely, राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होते. जहाँ आप ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, इसमें अगर आप इससे एग्री नहीं भी करते तो फिर भी जो आप आर्गुमेंट डेवलप करेंगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे. सो डेफिनेटली देयर आर नो क्लियर कट राइट और रॉन्ग आंसर्स. ठीक कहा आपने मुस्तफा इमरान. फिर अहमद शाह का क्वेश्चन है, इन एक्सपोजिटरी एसेज वी कांट कंट्राडिक्ट द स्टेटमेंट, राइट? Like we can't say that globalization is good. Yes, but you know, इसके साथ लिखा हुआ तो नहीं है ना कि it is an expository essay. It is you who have to see. अहमद शाह, you have to decide whether you are going to. कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे ये पहले ही आ गया है, शुरू में ही आ गया और अच्छा है कि आ गया, कि which can go either way. ठीक है, यानी इसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की टाइप भी कह सकते हैं. आपने डिसाइड करना है कि आप इसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे बना के लिखना चाह रहे हैं या एक्सपोजिटरी ऐसे. उसके साथ तो नहीं लिखा होगा ब्रैकेट में कि ये आपने एक्सपोजिटरी लिखना है, नरेटिव लिखना है, आर्गुमेंटेटिव लिखना है. तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आप उसको किस पर्सपेक्टिव से लिखना चाह रहे हैं. यू वांट टू मेक इट एन एक्सपोजिटरी ऐसे और एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे. थोड़ा सा स्लाइड फर्क है, अभी हम इस आगे चल के ये बात आएगी. ठीक है जी अहमद शाह, आई होप I've made myself clear. So we'll move on to the structure of the expository essay. So these are a few items, a few elements rather, which your essay should have. First paragraph के अंदर a clear, concise thesis statement. थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली, मजीद आगे चलने से पहले आपके दिमाग से कंफ्यूजन जो है वो निकल जाए. ये खटक साहब हैं, स्पोगमाई खटक. सर, डज इट डिपेंड ऑन आवर थीसिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर फॉर अस टू डिसाइड वेदर ये एक्सपोजिटरी होगा या आर्गुमेंटेटिव? बिल्कुल ठीक है, आपने सही पकड़ा खटक साहब, आई एग्री. तो यू आपको जाहिर है थीसिस स्टेटमेंट जो है वो है क्या, मैं बताने लगा था, आपका सवाल की तरफ मेरा ध्यान चला गया. तो वो है ये चीज, इट डिटरमिन्स वेदर यू आर which डायरेक्शन योर एसे इज गोइंग टू टेक. थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है कि क्विकली मैं एक उसका वो दे देता हूं. मसलन पीस इन अफगानिस्तान. अटक साहब, आपके पड़ोस में जो प्रॉब्लम चल रही है, so peace in Afghanistan टॉपिक है, is a dream for example. Peace in Afghanistan is a dream. ये एक आपको टॉपिक मिल जाता है, आप इस पर लिखना चाह रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव ले सकते हैं. आप कह सकते हैं नो इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियलिटी. आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है. और कोई कह सकता है कि यस इट इज अ ड्रीम बट इट कैन स्टिल बी अचीव्ड. तो एक और कह सकते हैं कि नो, एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो चांस ऑफ एनी पीस इन अफगानिस्तान, इट विल रिमेन अ ड्रीम. ये तीन जनरली इससे मुख्तलिफ भी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. तो आपका थीसिस जो है वो इस चीज को, पीस इन अफगानिस्तान के बारे में जो आपका पर्सपेक्टिव है, मतलब मैं कहता हूं कि जी पीस इन अफगानिस्तान पॉसिबल है, ड्रीम नहीं है, पॉसिबल है, फकत अगर हमारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो ये डिसाइड कर लें कि उनको अफगानिस्तान में पीस चाहिए. ये मेरा थीसिस स्टेटमेंट है. how would I write it? I would say that peace in Afghanistan is not just a dream, it can turn into reality. अब ये दूसरा सेंटेंस हो गया. स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि एक सेंटेंस होता है, दो तीन मिल के सेंटेंसेस एक स्टेटमेंट बनाते हैं.
सो यह बना सकते हैं, एक सेंटेंस में भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो दूसरे में चला गई बात। तो मैंने स्टार्ट किया था, लेट प्लीज लिसन केयरफुली, कि पीस इन अफगानिस्तान इज नॉट अ ड्रीम ओनली and it can be turned into reality if the stakeholders, all the stakeholders decide or have resolved to or are determined to find a solution which is acceptable to the various stakeholders. अच्छा, ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट दे दिया। अब ये थीसिस स्टेटमेंट कैसे है? ये ऐसे है कि इससे मेरे पढ़ने वाले रीडर को पता चला कि मैं ये बात कर रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अगर अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। अब मुझे मेरे इसका मतलब है कि मेरी जो डायरेक्शन होगी आर्गुमेंट की वो किस तरफ होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स कौन से हैं वो मैं बताऊंगा, गिनवाऊंगा, और हर एक स्टेक होल्डर के क्या क्या स्टेक्स हैं, व्हाट इज एट स्टेक, और फिर साथ ये भी एनालाइज करूंगा कि वेदर it is possible for that stakeholder to make amends to whatever standpoint that particular stakeholder has taken. So एक ये बताना चाह रहा था कि आपकी डायरेक्शन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो हमें क्लियर होती हुई नजर आती है थ्रू योर थीसिस स्टेटमेंट। तो अगर क्लियर, जितना क्लियर होगा थीसिस स्टेटमेंट, उतना ही क्लियरली आप अपने आर्गुमेंट को डेवलप कर लेंगे। इसको लिखने से पहले आपको टाइम स्पेंड करना होगा, 2, 4, 5 मिनट, 6 मिनट एक अच्छा सा थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर आप कार में अक्सर सफर करते हैं, गाड़ी में, बस में, और आपको फील होता है कि उसमें गियर चेंज हुए। अच्छा, अब गियर चलाने वाला गाड़ी जो है वो अगर इम्प्रॉपरली चेंज करता है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे में, पांचवें में जाता है, अगर तो वो अच्छा राइडर है, अच्छा ड्राइवर है, स्मूथ, तो जो ट्रांजिशन होगी फ्रॉम 1 to 2nd गियर, दैट विल बी स्मूथ। और अगर वो प्रॉपरली नहीं चला रहा या किसी भी वजह से, हो सकता है वो एक्सपीरियंस ड्राइवर ना हो सकता है कि वो फोन पे बात कर रहा हो, तो फिर क्या होगा कि फिर ट्रांजिशन जो है फ्रॉम 1 गियर, फर्स्ट गियर टू सेकंड, और सेकंड टू थर्ड, और व्हिचएवर, वो स्मूथ नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप ऐसे लिखते हैं तो ट्रांजिशन फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, जैसे कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं, बॉडी में एक पैराग्राफ तो नहीं होगा, बहुत से 10, 15, 20 हो सकते हैं, और फिर उन पैराग्राफ में फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन बॉडी पैराग्राफ टू द सेकंड, टू द थर्ड, टू द फोर्थ, वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, उसमें क्लियर, आप फ्लैग होस्टिंग उसको कहा जाता है कि आप जब कंक्लूड कर रहे हो एक पैराग्राफ को तो हिंट दे दें अगले पैराग्राफ में आप क्या कहने जा रहे हैं। तो ये क्लियर लॉजिकल ट्रांजिशन होनी चाहिए बिटवीन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। तो ये जैसे लिखा हुआ है, ट्रांजिशंस आर द मॉर्टर दैट होल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ द एसे टुगेदर। मॉर्टर समझते हैं ना, वो जो बिल्डिंग बनाते हुए जो ईंटों के दरमियान में गारा मसाला लगाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह ट्रांजिशंस जो हैं वो एक अच्छी ट्रांजिशंस को यूज करना, उनकी मदद से आप एक अच्छा स्ट्रांगली बिल्ट एसे जो है वो करते हैं। और उसमें है क्या, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। आपकी जो आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं उसने जो मूव करना है फॉरवर्ड, उसमें लॉजिक हो। अगर वो इलॉजिकल बातें होंगी, इररिलेवेंट चीजें होंगी, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड कंसाइज एसे। देन देखिए, जो भी आप आर्गुमेंट कर, जो इवन इफ यू आर एक्सपोजिंग समथिंग और आर्गुमेंटिंग समथिंग, तो आपके यू नीड टू हैव एविडेंस to support what you are saying. So each paragraph should be limited to the exposition of one general idea. एक जनरल आइडिया को एक पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। एक से ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, एम्बिगुइटी क्रिएट होगी।
कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई, उसको आपने उसके बारे में आपने एविडेंशियल सपोर्ट की, और साथ ही एक दूसरा पॉइंट उसी पैराग्राफ में ऐड कर दिया। नो, यू वांट टू बिगिन अ न्यू पॉइंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यही पैराग्राफिंग है। दिस इज व्हाट इज पैराग्राफिंग, दैट यू पुट वन आइडिया इन वन जनरल आइडिया इन वन पैराग्राफ, elaborate on it, include evidential support, try to remain concise, try to remain to use a language which is readable and which is interesting. और उन पैराग्राफ्स के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। जो मैं कह रहा था ना, क्लैरिटी के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट जो है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट की है कि आपकी डायरेक्शन, आपके आर्गुमेंट लॉजिकल हो। जितने ज्यादा लॉजिकल होंगे, जितने ज्यादा एविडेंस बेस्ड होंगे, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कनेक्शंस आप लिख रहे हैं, इसमें हमजा अली कनेक्टर्स क्वेश्चन है। कनेक्टर्स, यस कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, इफ यू आर राइटिंग अ नरेटिव फॉर एग्जांपल, जिसमें पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर कंक्लूड कैसे करेंगे, तो ये कनेक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दिस, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दैट। ये कनेक्टर्स हैं जो लॉजिकल कनेक्टर्स भी इनको कहा जाता है। ये यूज किए जाते हैं पैराग्राफ्स की बिगिनिंग में, पैराग्राफ को कंक्लूड करते हुए, नेक्स्ट, लेटर ऑन, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, ये सारे के सारे हेल्पफुल होते हैं इन कीपिंग योर आर्गुमेंट डायरेक्शन ऑफ योर एसे क्लियर एंड कंसाइज। फिर उसके बाद है बिट ऑफ क्रिएटिविटी, विच जनरली एज वी नो, क्रिएटिविटी जो है वो हर बंदे को अल्लाह ताला ने दी हुई है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना जनरली मुश्किल होता है। कुछ लोग समझते हैं कि जी सिर्फ शायरी कर लेना क्रिएटिविटी है, या अफसाने लिख दिए, नावल लिख दिए, कुछ और। क्रिएटिविटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि वॉट एवर यू आर सेइंग, आपसे पहले, मिसाल है, एक ऐसे का क्वेश्चन दिया जाता है, ये इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 57 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ इन द क्लासरूम, एक ही टॉपिक दूंगा तो वो 56 57 डिफरेंट तरीके से एक ही बात को कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि हर कोई क्रिएटिव है, हर किसी ने अपने अपने तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की है। तो क्रिएटिविटी, शोइंग अ बिट ऑफ क्रिएटिविटी मींस इट इज इसको हम ये ना समझें कि इट इज एन इट इज स्पेसिफिकली बेस्टोर्ड अपॉन बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, बट डेफिनेटली इट हैज टू डू समथिंग विद द आर्ट्स, आर्टिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। उसको उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि जब आप लिखें, जब आप प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे, तो आप रीड करें एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मैंने लिखा है इसमें क्या मैं बार बार कोई लफ्ज, कोई टर्म्स रिपीट तो नहीं कर रहा। आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ पुराने अटेम्प्टेड एसेस लोगों के, उसमें मैं बताऊंगा क्या चीजें बोरिंग बनाती हैं, क्रिएटिविटी कैसे आपकी हैम्पर होती है, उसमें रुकावट किन चीजों की वजह से पड़ती है। अच्छा, देयर इज अनदर समथिंग हियर, सबा खान, sir, we have covered all the basic knowledge of essay structures and types. All right, well, I didn't know that. I didn't know that you had covered the basic structure. I was just told that this is a new class that you have to start. So definitely, if I had known, I would have jumped on to the next content, which is again related to the structure. उसमें हम स्ट्रक्चर को जो है वो करते हैं थ्रू showing how to write a thesis statement, how to write an introductory paragraph, और फिर एक और किसी ने लिखा है, ओके सर थैंक यू। फिर क्या है, महक ने कहा है कि बट इट्स गुड इफ यू गो थ्रू बेसिक्स टू, और फिर क्या है, सर यू प्लीज कीप इट अप, हमजा भी यही कह रहे हैं।
और हिना कह रही है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर न्यू. ऑल राइट, सो आई मीन यस, इवन इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, ये एक तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा. मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, ऑल दो मतलब ये मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी फोकस्ड रहूँ, मैं भी इधर उधर ना हूँ. So yes, we'll continue with it. Maybe you get a few new insights. So bear with me, please. I hope you would. Hina Hassan says most of the things are new. Okay, thank you. All right. So quick feedback होगी. अच्छा, ये मैं कर लूँ तो क्योंकि since I now know that you have the basic information with you, मैं I'll go through it quickly and then we can have a question answer session. जिस तरह भी आप question करें तो definitely intelligent कहते हैं ना कि intelligent question brings a comprehensive answer. तो आप जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है you are all mashallah intelligent people, so you may ask questions which I may have not touched when I'm exposing. I'm exposing basically what essay writing is. Expository lecture है मेरा. So you may have a few things that crop up in your mind जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो just keep noting them down and we'll have a relatively longer question answer sessions in the last 15-20 minutes. All right then. Okay, thank you. So then we move on to, we were talking about creativity. We were talking about creativity. ये याद रखें कि बेशक आपको ये लिखा हुआ है, remember that though you may not be crafting the next great novel, but still you are attempting to leave a lasting impression on the people evaluating your essay. एग्जामिनर मेरे जैसे आपका जो ऐसे पढ़ते हैं वो किसी को 70 दे देते हैं 100 में से, क्यों देते हैं? और किसी को पास भी नहीं करते, 40 से कम नंबर देते हैं, क्यों? उस जितना किसी ऐसे के अंदर नॉवेल्टी होगी, नॉवेल्टी का ये मतलब नहीं कि वो फैक्ट बंदा जो है वो कहीं पता नहीं कहां से उठा के ले आएगा. फैक्ट्स और फिगर्स मिलते जुलते होते हैं. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सिमिलर इंफॉर्मेशन जो कि वो एविडेंस के तौर पे अपने पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए दे रहे होते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल जो है कोविड-19 की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले. कोविड-19 के बारे में अगर आप उसकी डेफिनेशन उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो वो मिलती जुलती हो, बट हाउ concisely and how clearly you put it up as a writer would definitely make a difference. मैं अभी आपको कहूँ, यहाँ टाइप करके मुझे दीजिए what is COVID-19, तो आप देखेंगे, खुद ही देख लेंगे कि उसका जो आंसर होंगे, 10 लोग आंसर करते हैं तो 10 के 10 डिफरेंट होंगे, और फिर आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि उनमें से 1-2 आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बाकी 5-6 ऐसे ऑर्डिनरी से लगेंगे, और फिर 1-2 जो है वो आप कहेंगे ये क्या लिखा है. ऐसा ही है ना नेचुरली. सो क्रिएटिविटी कहाँ पे आती है कि आपने इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, और ये कैसे होगा? 3 घंटे के एग्जाम पेपर के दौरान आप नहीं कर सकेंगे, यानी तभी कर सकेंगे अगर आपने पीछे कोई 300 घंटे की प्रैक्टिस की हुई है. और मैं आई एम नॉट जोकिंग, 300 चैलेंज ज्यादा बोल दिया, लेकिन 300 घंटे कोई ज्यादा नहीं होते है सच. 5 दिन बनते हैं 300 ना, कितने बनते हैं 300? तब तकरीबन 10 दिन, लेकिन 24 आवर्स. तो मतलब ये है कि एक लंबी प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है. आप लिखें, चेक करवाएं, लिखें, चेक करवाएं. अच्छा, फिर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो लिखना है, राइटिंग है. एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन है. यू मे हैव अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, यू मे बी वेरी शार्प mentally, but it is of no use if you cannot put your sharpness and your good personality. वो उसमें आप फोटो तो नहीं लगाएंगे, but that happens through your use of language, how creatively, how interestingly you use. इसमें एक अभी से मैं बात क्लियर करता चलूं, आगे मजीद बात भी होगी. some स्टूडेंट्स अभी आप में से पूछेंगे भी मुझे कि जी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. लैंग्वेज में से मतलब है कि वोकैबुलरी हमें कैसे यूज करनी चाहिए. शुड वी बी यूजिंग वर्ड्स विच
which are rare, which are not very common, or should we be using simpler, easier words? तो मेरा ख्याल है ये चॉइस बहुत कम लोगों के पास होती है टू चूज द वोकैबुलरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, फॉर अस, इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. उर्दू में भी बात करते हुए हम चूज कर सकते हैं अगर उर्दू अच्छी हो. तो अंग्रेजी तो फिर जैसे मैंने बोला कि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हम वी आर नॉट सो मच एक्सपोज्ड टू इट, सो वी डोंट हैव मच चॉइस इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी. बस ये है कि अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट यूसेज के साथ इस्तेमाल हो तो वो खूबसूरत है. देखिए वो मैं क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, टीचर हूं, तो ब्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, व्हाट इज ब्यूटी. अगर मैं आपसे सवाल करूं व्हाट इज ब्यूटी, तो आप उसको कैसे, उसका क्या जवाब देंगे? बताइए. कहते हैं ना हम किसी चीज को देख के कहते हैं ब्यूटीफुल, या व्हाट अ ब्यूटी. व्हाट इज दैट ब्यूटी? कैन यू स्पेसिफाई? मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे कि मुश्किल है स्पेसिफाई करना व्हाट इज ब्यूटी. तो उससे हाँ देखा, अभी आने शुरू हो गए. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, लेकिन वो क्या, व्हाट इज दैट इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर व्हिच वी से इज ब्यूटी? मैग्ना ऑपस ऑफ द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ठीक. तो ब्यूटी को अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज ब्यूटी, तो मैं कहूंगा इट इज वेल प्रोपोर्शन, इट इज समथिंग व्हिच इज प्रॉपरली प्रोपोर्शनड. उसको मैं कहूंगा कि ब्यूटीफुल. एनीथिंग व्हिच हैज सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन इज ब्यूटीफुल. अब देख लीजिए, कोई बड़ा बड़ा हैंडसम चेहरा है मिसाल के तौर पे, तो वो क्या होगा, उसके जो एलिमेंट्स हैं, चेहरे के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें प्रोपोर्शन होगा. नाक मेरे जितना बड़ा ऊंचा ना हो, आंखें प्रॉपर बहुत बड़ी भी ना हो और बिल्कुल ऐसे छोटी भी ना हो, इसी तरह होंठ, मुंह इतना बड़ा भी ना हो और बिल्कुल छोटा सा भी ना हो. क्या मतलब है कि प्रोपोर्शन हो सारी चीजों के अंदर. सिमेट्री तभी आएगी, खूबसूरती तभी आएगी. ये दानियाल इमरान ने सिमेट्री लिख दिया. सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इन रिलेशन टू वोकैबुलरी, ये बात स्टार्ट हुई थी. तो अगर आप इफ यू आर वेल रेड एंड इफ यू प्रैक्टिस प्रॉपरली, तो आपके प्रोपोर्शन आपके लैंग्वेज के अंदर आ जाती है, विच क्रिएट्स ब्यूटी, विच लुक्स क्रिएटिव. अच्छा जी, तो हम अब इसकी तरफ वापस आते हैं. बॉडी पैराग्राफ्स में ट्रांजिशन की बात की थी. अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ कंक्लूजन दैट डज नॉट सिंपली रीस्टेट द थीसिस बट रीएड्रेसेस इट इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड. जनरली आपने सुन रखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जी जो आइडियाज अपना फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर होते हैं, उन्हीं को रिफ्रेज करके हम जो है वो कंक्लूजन में लिखते हैं. बिल्कुल ऐसा है. लेकिन कंक्लूजन में जब लिखते हैं, जब शुरू में लिखते हैं, तो उस वक्त तक हम सिर्फ क्लेम कर रहे होते हैं. वी आर जस्ट क्लेमिंग अ फ्यू थिंग्स कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होगा. आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं. अब कंक्लूजन लिखते हुए आप जो कुछ करके आए हुए होते हैं, जो आपने आर्गुमेंट डेवलप किया होता है, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं विद एविडेंस. और जब कंक्लूड करेंगे तो फिर एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन होगा. फिर उसमें डेफिनेटली नई चीज तो आप कोई ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करके आए हुए, जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, उसको एविडेंस के साथ रीफ्रेज करके आप कंक्लूड करेंगे. कंक्लूजन में कोई नई बात कर देना खुदकशी है, यूं समझिए. मैंने अंडरलाइन किया हुआ, डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द कंक्लूजन. ये सामने आपको हाईलाइटेड स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. सो आपको बेसिकली जो कुछ पहले दिया हुआ है उसको सिंथेसाइज कर, आप शुरू में एनालाइज करते हैं चीजों को वन बाय वन अपने आर्गुमेंट में, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, और फिर एंड के ऊपर सिंथेसाइज करते हैं, मिलाते हैं. एनालाइज करना होता है यानी डिवाइड करना, वन बाय वन. सिंथेसाइज सबको मिला के एक. अच्छा, अब सबको मिला के कोई एक बात करना, इट्स नॉट अगेन सिंपल थिंग. इसके लिए भी अगेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने जरूर पहले एग्जाम दिया होगा, तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि अगर आप ऐसे में प्रिपेयर होके नहीं जाते, कि आपको, और वो तभी नहीं जाते आप ऐसे में प्रिपेयर होके जब आपको ये
कॉन्फिडेंस हो कि आप लिख सकते हैं, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, वहीं से कोई टॉपिक उठा लूंगा और मैं आई वुड बी एबल टू राइट इट वेल फाइन. अ फ्यू, वेरी फ्यू आर से 10,000 इम्तिहान देते हैं तो शायद 15-20 लोगों में मैं अज्यूम करता हूँ ये स्किल हो सकती है, लेकिन बाकी 9,500 आदमियों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्रेपरेशन की जरूरत है. और वो प्रेपरेशन इट स्टार्ट्स विद अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड इट कल्मिनेट्स इन अ लॉट ऑफ राइटिंग. तो राइटिंग वुड मेक यू एबल टू राइट अ गुड एसे. तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है. तो ये जो इसका कंप्लीट आर्गुमेंट की बात यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई बात, जैसे अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो मैं बात करूंगा उसका एक बिगिनिंग है, उसका ये जो अभी जिस स्टेज में से हम गुजर रहे हैं ये इसका मिडिल है, और फिर आखिर पे आज का लेसन जब कंक्लूड करूंगा तो वो उसका कंक्लूजन होगा. कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी डिबेट, कोई भी बात जब आप किसी से करते हैं तो डेफिनेटली इन 3 स्टेजेस में से गुजर के वो बात कंप्लीट होती है. तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो essay है, it should have a complete argument, it should show that it has a beginning, it has a middle and it has an ending. तो तभी एक argument complete आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं और किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, किसी अपने एग्जामिनर को, कि आपने प्रॉपर मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आइडिया और कॉन्टिन्यूटी ऑफ आर्गुमेंट आपने मेंटेन की है. तो यहाँ तक जनरली हमने देखा. फिर उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर के बारे में है कि स्ट्रक्चर क्या होता है. कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, एविडेंशियल बॉडी पैराग्राफ्स, और फिर एक कंक्लूजन. अगली टाइप ये, यानी ये जो 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, क्या होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एविडेंशियली बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, ये तीनों हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो ऊपर बातें हैं ये इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इससे अगले टाइप ऑफ एसे को जाते हैं जिसको हम आर्गुमेंटेटिव या लिटरेरी एसे वही लिखेगा जिसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है. जरूरी नहीं कि एज ए स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, यानी एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए पर्शियन है, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं. मैंने बहुत से बैंकर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ा हुआ है. उनमें से राइटर हैं बड़े मशहूर, क्या नाम है, मजाहिया राइटर हैं, वो बैंकर हैं लेकिन बड़े लिटरेरी फिगर हैं. सो लिटरेरी टॉपिक जनरली जो है, लिटरेरी एसे वो वही चूज करेगा जिसने एक अच्छा, जिस मतलब रेपर्टॉय है जिसके पास लिटरेचर का. उसके अलावा जनरली आमतौर पे लोग ऐसे एसेस को अवॉइड करते हैं. इसको मैंने इसके साथ ब्रैकेट इसलिए किया है कि लिटरेरी टॉपिक भी आर्गुमेंटेटिव होते हैं, और उसके अलावा भी जो आर्गुमेंटेटिव एसेस हैं उनके अंदर आर्गुमेंट एक खास सपोर्ट करने के लिए आपने उसको आर्गुमेंट बेस्ड होता है. बेसिक ये जो है ना एक्सपोजिटरी, ये इसको यूं समझिए कि ये डेफिनेशन बेस्ड है. इसमें आपने डिफाइन करनी होती हैं चीजें, और जो आर्गुमेंटेटिव है उसमें भी डेफिनेशंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उन डेफिनेशंस को आपने अपने आर्गुमेंट को प्रूव करना है थ्रू द हेल्प ऑफ एविडेंस. अच्छा, मिलते जुलते हैं डेफिनेशन में भी आपको पता चलेगा, अंदाजा होगा कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे रिक्वायर्स अ स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक. यही चीज हमने उसमें भी पढ़ी थी. अब इन्वेस्टिगेशन इज कॉमन टू, आई वुड से, ऑल टाइप्स ऑफ एसेज. आर्गुमेंटेटिव में जरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉपिक इज रिक्वायर्ड. जनरल बातें नहीं कर सकते आप. जब आप आर्गुमेंट को प्रूव कर रहे हो किसी चीज को, तो देन यू may not be very effective using general information. Specific focused investigation होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा essay जो है उसको
फॉर्मुलेट करेंगे। collect, generate and evaluate evidence and establish a position on the topic in a concise manner. जी वेरी गुड, मुझे नाम भूल रहा था, जहां ज़ेब खान, मुश्ताक अहमद यूसुफी, यस। अच्छा, असल में इधर साथ अजान भी हो रही है, शायद आवाज आ रही हो आपको, तो मेरे लिए अच्छी खासी डिस्ट्रैक्शन है, मेरे बिल्कुल कानों में वो पड़ रही है, तो एनीवे अभी खत्म हो जाती है। लेट मी हैव अ फ्यू सिप्स, आप भी कोई पानी पी लीजिए। अजान में वैसे भी कहते हैं अजान के दरमियान बोलना नहीं चाहिए। आई विल जस्ट टेक 2 minutes ब्रेक। All right, so we were talking about the argumentative essay, and I was telling you that there can be a confusion of what's the difference between the two. तो मैं आपको ये बता रहा था कि argumentative essay में जरा detailed research की जरूरत होती है। Argument को support करने के लिए you may require empirical evidence which is based on experiments. Empirical evidence वो होता है जो experiment based होता है। Secondary research आपको पता है ना, there are two types of researchers. एक primary research है जिसमें आप खुद से evidence प्रोवाइड करते हैं, ढूंढते हैं, और एक सेकेंडरी रिसर्च है जिसमें आप दूसरों की हुई रिसर्च को अपने आर्गुमेंट का हिस्सा बनाते हैं। सो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि आप, और ना ही इसका ये मतलब है कि जब आपको ऐसे लिखना होगा आप उस वक्त रिसर्च शुरू करेंगे। इस रिसर्च का मतलब ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जनरली हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें और वो वही टॉपिक होंगे जो कि जनरली रिपीट हुए हैं। तरीका यही है, एज यू ऑल नो दैट वी चूज टॉपिक्स व्हिच हैव अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, और फिर हम उनमें देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो बार बार आए हुए हैं, और फिर हम उनको फोकस करके प्रिपेयर करते हैं। अब जब उनकी प्रिपरेशन हो रही हो तो उससे रिलेटेड डाटा आपको रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड चीजें आपको पहले से इकट्ठी करनी है। जैसे मैं शुरू में कहा कि आपको 10, 15, 20 ऐसे लिखने चाहिए, पूरे फुल फ्लैज, फुल लेंथ, और कोशिश करें शुरू में तो फॉर प्रैक्टिस आप छोटे छोटे ऐसे लिखिए। इस चीज को छोड़ के कि 2000 या 2500 वर्ड पूरा करना है, अपना कंप्लीट आर्गुमेंट डेवलप कीजिए, बस इस पे तवज्जो रखिए। उसमें 5 पैराग्राफ बनाइए, 25 पैराग्राफ तक, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप प्रैक्टिस के लिए चूज करें, पहले इन्वेस्टिगेट करें।
अच्छी सी इन्वेस्ट, अगर वो आर्गुमेंटेटिव है तो यू विल बी मेकिंग एंड राइटिंग गुड आर्गुमेंटेटिव एसेज। इसके एग्जांपल के तौर पे कुछ टॉपिक्स हैं, ये सामने आपके आए हुए हैं। जैसे है, इज colonial mentality impeding Pakistan's progress? Now this is a question which may require you to answer in yes or no. इसका जवाब yes हो सकता है या इसका जवाब no हो सकता है। दोनों सूरतों में आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आप बता सकें कि वाकई जो है वो इम्पीड हो रही है, या अगर आप बता सकें कि नहीं, इम्पीड नहीं हो रही। दोनों सूरतों में आपके पास क्या कहना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ताकि आप अपने पॉइंट को सपोर्ट कर सकें। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? थॉरो इन्वेस्टिगेशन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। देन इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड। ये लिटरेरी ऐसे है बेसिकली, और ये इसको लिखने के लिए भी अगेन व्हाट इज लेमन, व्हाट इज लेमनेड ही सिर्फ आपने नहीं बताना, बल्कि आपने प्रूव करना है कि हाउ डज लाइफ गिव्स अस लेमन एंड हाउ कैन वी मेक लेमनेड। अगेन ये नॉट एन इजी टॉपिक टू हैंडल, तो जनरली इस तरह के ऐसे टॉपिक्स स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपके ग्रुप में, आपके इस कोहोर्ट में जितने भी पार्टिसिपेंट है 57, 56, उनमें से 1, 2, 3 शायद ऐसे होंगे जो इस तरह के चैलेंजिंग टॉपिक पे लिखना चाहेंगे। तो उनको लिखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, कैन वी से बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग? यस, व्हाई नॉट सबा? यस वी कैन, लेकिन फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक चीज को निगेट करना और एक चीज को सपोर्ट करना, ये दोनों आसान है, एक काम किया जा रहा होता। अब दोनों को एक इकट्ठा सपोर्ट करना जरा मुश्किल होता है। तो सोच लीजिए कि इस तरह अगर आप कर देंगे, उसमें क्लैरिटी होगी, उसमें कॉन्टिन्यूटी होगी, उसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंशियल सपोर्ट होगी, तो ऐसे गलत नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में कहा कि देयर इज नथिंग फुल्ली रॉन्ग एंड नथिंग absolutely correct. There are always gray areas. Nothing is clearly black, nothing is clearly white. It's about lemon cakes. Daniel, you like lemon cakes, I suppose. फिर एक और देखिए, great nations win without fighting. How they win without fighting? You have to prove that. और फिर है, are modern wars not holy wars? तो आपने बताना है कि हैं कि नहीं है, कैसे हैं अगर हैं तो, कैसे नहीं है अगर नहीं है तो। बेसिकली आई वुड डिसएग्री कि नो, दे आर नॉट होली वॉर्स, ये सारी ऑयल की वॉर्स हैं। आई सपोज यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसको इस एविडेंस की बेस पे कि होली वॉर्स नहीं, अनफॉर्चुनेटली दुनिया वैसे रिलीजन पे डिवाइड हुई है, लेकिन दे आर नॉट होली वॉर्स, दे आर द वॉर्स फॉर रिसोर्सेज। और इसका स्ट्रक्चर भी, इसमें रेपिटेशन है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा टू सेव टाइम। ये देखिए, क्लियर, कंसाइज एंड डिफाइंड थीसिस स्टेटमेंट दैट अकर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ द एसे, ये वही पॉइंट है। फिर इसी तरह क्लियर एंड लॉजिकल ट्रांजिशन बिटवीन द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और फिर बॉडी पैराग्राफ्स दैट इंक्लूड एविडेंशियल सपोर्ट। और ये पॉइंट इसमें नया है, क्योंकि इसमें एविडेंस ज्यादा है, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। एविडेंशियल सपोर्ट कितनी किस्मों की हो सकती है, ये बताया हुआ है इस पॉइंट में। फैक्चुअल हो सकती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और लॉजिकल हो सकती है बेस्ड ऑन लॉजिकलिटी ऑफ समथिंग, और फिर एविडेंस स्टैटिस्टिकल हो सकता है, डाटा, या फिर एनेक्डोटल होता है किसी के साथ। जैसे आप कहना चाहें कि पाकिस्तानी रोड्स आर नॉट सेफ फॉर ट्रैवलिंग, स्पेशली फॉर फीमेल्स अलोन, तो फिर आप उसको एविडेंस के लिए क्या करेंगे, एविडेंस कैसे देंगे? एनेक्डोटल होगा। वो जो कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ शेखुपुरा वाली खातून के साथ, जो गुजरांवाला जो जा रही थी बेचारी, सो एनेक्डोटल इस तरह की होती है जिसमें एनेक्डोट, कोई वाकया जो है वो आप बताते हैं।
सो ये किसी भी किस्म की एविडेंशियल सपोर्ट है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो एविडेंशियल सपोर्ट होती है। ये हाईलाइट करने का, यहाँ पॉइंट आउट करने का यही मतलब है कि एविडेंशियल सपोर्ट इंक्लूड्स फैक्ट्स, ये हुआ था और उसके बाद ये हुआ, और लॉजिकल इम्प्लीकेशंस। हम कोई चीज किसी चीज से, हम जैसे मिसाल है, अभी इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का खत्म किया, अभी तक तो खत्म किया है, उसके बाद क्या होना है, क्या होगा, तो जो होगा वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन लॉजिकली यू कैन वेरी वेल इन्फर व्हाट इंडिया इज प्लानिंग टू डू। तो इस तरह की जो एविडेंसेस हैं वो लॉजिकल होते हैं। और फिर स्टैटिस्टिकल तो सिंपल क्लियर वर्ड है, और एनेक्डोटल भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें भी वही बात कि कंक्लूजन जो है, इट शुड नॉट be simply a repetition of the thesis statement, but it readdresses it in the light of evidence provided। जो आपने एविडेंस अपने बॉडी पैराग्राफ्स में दिया है, उसकी रोशनी में आप उसको रीएड्रेस करेंगे। कंप्लीट आर्गुमेंट होना चाहिए। सो लॉन्गर आर्गुमेंटेटिव एसेस, ये जनरली जो जिन लोगों ने एमएस वगैरह एमफिल किया होगा, उनका जो फाइनल असाइनमेंट, जिसको हम बेसिकली थीसिस राइटिंग कहते हैं या रिसर्च पेपर राइटिंग कहते हैं, वो दे आर जनरली आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि आपका थीसिस होना जरूरी होता है। थीसिस वही है जिसमें थीसिस स्टेटमेंट है। तो कम्प्लेक्स इश्यूज और डिटेल्ड रिसर्च जो है, उसके लिए लॉन्गर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखे जाते हैं जनरली। जो हमारे सीएसएस के अंदर है सिलसिला, उसमें इसकी जरूरत नहीं होती। आई विल जस्ट लीव इट आउट। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि लफ्ज बता रहा है, ये तीसरी टाइप ऑफ ऐसे हमारे सामने है। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सनैलिटी और अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस और a feeling और emotion और a situation, जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो दैट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसमें एक सवाल नजर आ गया, क्या है जी? सर, लिटरेरी ऐसे में हम फिलोसॉफिकल वे में जैसे राइटर्स के पॉइंट्स हैं वो देंगे, या फिर उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाना चाहिए? दोनों होंगे बेटे सदफ। जो देखिए, लिटरेचर जो है वो इट इज बेस्ड इन फिलोसफी। आर्ट की जो बेसिकली पता होगा आपको, मैं जस्ट फॉर शेयरिंग समथिंग, कि आर्ट क्या है बेसिकली। आर्ट को हम, ये जो लकड़ी से कोई वुड बनाता है, वुड से सॉरी कोई टेबल बनाता है या कुर्सी बनाता है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं? मेरा ख्याल है नहीं कहते, उसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं। और जो उसी लकड़ी से कोई बुत बनाता है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, ऐसा ही है ना? सो इट मीन्स कि आर्ट और क्राफ्ट में थोड़ा फर्क है। तो आर्ट्स जो है बेसिकली, वो उनकी टाइप्स जो हैं, वो एक आपके सामने है जो अभी मैंने नाम लिया स्कल्पचरिंग इज एन आर्ट। दूसरा आर्ट जो है वो पोएट्री है। तीसरा आर्ट जो है वो पेंटिंग है। और चौथा आर्ट जो है वो क्या है? पोइट्री। जब पोइट्री कहा जाता है तो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी थ्रू राइटिंग, ड्रामा और नॉवल और शॉर्ट स्टोरी और पोएम्स और आजाद नज़म और गजल और ये वो सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली ये तीन फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, और कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट किसी एक फिलॉसफी को फॉलो कर रही होगी, फिलॉसफी से बाहर नहीं जा सकती, एक किसी फलसफे की को एक्सपोज कर रही होगी। सो डेफिनेटली व्हेन वी आर राइटिंग a literary essay, so what is the philosophy behind it? We are definitely required to interpret that and expose it, and at the same time जो एविडेंस है वो जो जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू फिर उसको would be the evidential support that you would be using to justify your point of view. एक और सवाल आया कि सर विच टाइप ऑफ एसे इज सूटेबल फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स?
जैसे मैंने पहले कहा था कि जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको शौक है, जिसने बहुत पढ़ा हुआ है, वो तो अटेम्प्ट करे। नॉर्मली आप आर्गुमेंटेटिव या जो एक्सपोजिटरी ऐसे हैं जनरली वही आते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे बहुत कम आते हैं। अभी इस साल मैं होप कर रहा हूँ कि आए। पीएमएस में तो आया है, ये जो कोविड-19 का इशू है, इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एजुकेशन, ये डायरेक्ट एक टॉपिक आया था अभी पीएमएस के जो पिछले महीने एग्जाम हुए उसके अंदर, ऐसे सॉरी इंग्लिश जनरल के अंदर पैराग्राफ का टॉपिक था। तो अब ये बेसिकली क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इसमें बताना है कि ग्लोबल एजुकेशन कैसे इफेक्ट हुई। एक्सपोजिटरी भी है लेकिन बेसिकली डिस्क्रिप्शन ही है, और किसी ज्यादा रिसर्च की या उसकी एविडेंस को बड़ी स्टैटिस्टिकल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जनरली आप जनरल इंफॉर्मेशन जो मेरे आपके पास है उसकी मदद से इसके ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा जी सर, मेरा इंटरेस्ट फिलॉसफी में है, बट इज एसे से सब डरते हैं, दैट्स व्हाई कंफर्म करना चाह रही थी। कोई डरने की जरूरत कौन डरता है? यस, जैसे आप कह रही हो, फिलॉसफी अगर आपके दिमाग में क्लियर है और आप शौक रखते हैं तो फिलोसॉफिकल एसे हमेशा पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। और क्योंकि कम होते हैं, कम लिखने वाले होते हैं, आई बीइंग एन एग्जामिनर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये आया है कि जब हम एक ही तरह के बहुत से फैक्चुअल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ इस तरह का लिटरेरी एसे आ जाए तो वो हमें अच्छा लगता है। जनरली अगर उसका लैंग्वेज में गड़बड़ नहीं है तो नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगेन आई वुड से, क्रिएटिव होना के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई लिटरेरी ऐसे ही लिखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी नजर आएगी। एक और सवाल है सबा खान का कि जी सर, कैन वी कोट पोएट्री? यस, इफ इट इज रेलेवेंट, इफ पोएट्री कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड इफ इट इज रेलेवेंट। फॉर दैट मैटर कोई भी कोटेशन जो आप, वैसे तो स्पेयर्सली यूज होनी चाहिए, स्पेयरिंगली यूज होनी चाहिए, यानी कम यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूज करें तो बहुत रेलेवेंट हो और अप्रोप्रिएट जगह पे यूज हुई हो तो इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। लेकिन बहुत ज्यादा कोटेशन जो होती है ना, मसलन हर पेज के ऊपर एक कोटेशन भरी हुई है, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। दो चार अच्छी एक ऐसे के अंदर हो जाएं, दैट्स इनफ। Is it true that essays with incorrect grammar are given 0 marks straight away? Yes, not 0, लेकिन मैं 0 तो कभी किसी को नहीं दिया ऐसे के अंदर कि यार चलो एक बच्चे ने लिखा है तो मैं उसको 0 दे देता हूँ। मसलन उसने 15 सफ़े लिखे हैं तो 15 सफ़े लिखने का ही उसको अप्रिसिएशन दे दें, चले 10-15 नंबर दे दें, 20 दे दें, ताकि उसको ये ना हो कि मैंने डिस्करेज तो नहीं करना होता ना किसी को टोटली आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 10-15 नंबर भी 0, ये पास नहीं हुआ तो 0 हो या 40 हो, क्या फर्क पड़ता है? और 0 नंबर किसी को मान लें तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर खामखाई सख्त है, अननेसेसरीली। जनरली ऐसा होता नहीं है, 2, 4, 5, 10, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 से, लेकिन 100 में से 10, 15, 20 दिए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है ना, कम से कम। चलें अगर ग्रामर गलत है तो कई स्टूडेंट्स बेचारे अफसोस हो रहा होता है कि यार इसने कितने अच्छे इसके जो एविडेंस है वो कितना अच्छा है, लेकिन बेचारे को लिखना नहीं आ रहा। तो पैथेटिक है, लेकिन क्या करें, होता है इस तरह। एक और सवाल है कि जी सर, जिनको 36 और 37, इवन 39 से मैं 39 से मैं डिसएग्री करूंगा, नहीं दिए कभी भी, 35 तक दिए, ब्रेक लगा दिया उसके ऊपर कि क्लैरिटी हो। 35 का मतलब है, मैं अगर देता हूं ऐसे मार्क करता हूं तो मेरे जो फेलियर है वो 35 से होता है, पास जो है जाहिर है वो 40 अबव है, लेकिन 36, 37, 38, 39 नहीं होते मेरे मार्किंग के अंदर। क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि 35 वाला क्लियरली हम उसको बता रहे होते हैं कि भाई तुम फेल हो, और लेकिन थोड़ी सी एफर्ट अगर अगली दफा कर लो और तो तुम पास हो सकते हो। 38-39 पे मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई यूजुअली फेल करता है, नहीं करते किसी के। मसलन इंग्लिश है ना, कंपलसरी इंग्लिश भी मैं चेक करता हूं तो उसमें अभी जो इस साल चेक किए बहुत से पेपर, तो उसमें 37, 36, 38 किसी के बन रहे हैं तो उसको खींच के मैं तो ऐसे ही करता हूँ
36, 37, 38, 39 किसी स्टूडेंट के हैं. व्हाट आई वुड डू इज गो बैक टू द पेपर. जहां पे मुझे लगा होगा कि यार इसमें मैंने एक आध नंबर ज्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं दे के पास कर देता हूँ. 36, 37, 38, 39 पे मैंने तो कभी किसी को फेल नहीं किया. मैं सिर्फ एक एग्जामिनर हूँ, सैकड़ों होंगे. इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा. हाँ जी, ये शहरियार का क्वेश्चन है सर. आर एग्जाम स्क्रिप्ट्स checked by one examiner finally and conclusively, or is there a double checking by a second examiner also? No, there is no double checking. Examiners are chosen very discreetly by the Public Service Commission, और established होते हैं लोग, और उनको उन पे एतबार होता है. हैंकी पैंकी नहीं होती. मेरे से तो कसम उठवा लें कि मैंने कभी किसी को अननेसेसरी फेवर किया हो. हाँ, एग्जाम पेपर अच्छा है, डिजर्व करता है, तो मैं आई एम वन ऑफ द एग्जामिनर, जैसे मैंने बताया कि 72, 73, 75 नंबर भी दे देता हूँ. बिल्कुल ओथ्स आर टेकन बाय देम. यस. अच्छा, मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते एसए में? टॉपर्स के भी 40-50 के अराउंड होते मोस्टली. अहमद शाह, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. एसए में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 तक आ जाते हैं. मैंने दिए हैं, लेकिन हर साल नहीं होता ऐसे. और ये भी बता दूं कि एग्जामिनर जो हैं वो 3 साल से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली नहीं करते, फिर उनको ब्रेक दी जाती है, फिर और पैनल बनता है, फिर 3-1 साल वो करते हैं. फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त, मैं खैर छोड़िए इसको. तो एक और सवाल आया कि जी सर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू जस्ट पास, लाइक अ सेट एग्जांपल ऑफ एन एसे यू वुड नेवर गिव लेस देन 40. सर, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर एन एसे पेपर? ये भी बताते हैं. बेटे, जो क्वेश्चन है 40 नंबर वाले, लेस देन 40 ना लेने हो, तो फिर सबसे पहली शर्त है आपका एरर फ्री एसे होना चाहिए. यू शुड नॉट मेक एनी लैंग्वेज एरर्स. अच्छा, एनी लैंग्वेज एरर का मतलब ये नहीं है कि मसलन छोटे छोटे एरर्स में भी फर्क है ना. एक एरर है स्पेलिंग का, विच फॉर मी कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, क्योंकि मेरे अपने स्पेलिंग भी बहुत अच्छे नहीं. मतलब लिख लिख के कई दफा स्टूडेंट से गलत पढ़ के हमारे दिमाग में भी सम रॉन्ग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक. तो मैं उनको बहुत ज्यादा, हाँ, अगर बार बार हर दूसरी चौथी छठी लाइन में एक दो वर्ड्स बहुत ज्यादा मिसस्पेल हो रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम, इट कुड बी अ सीरियस इशू. लेकिन 2, 4, 6, 8 लफ्ज पूरे एसे के अंदर उनके स्पेलिंग गलत हैं, तो कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो ना इस तरह का ना हो, बहुत ज्यादा एरर्स ना हो, जैसे मैं कह रहा हूँ. आर्गुमेंट जो है वो क्लैरिटी के साथ हो, और क्रिएटिविटी बेशक ना भी हो, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश ना भी की हो, तो 40 नंबर मिल जाते हैं. चलिए सर, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन एसे पेपर? यू प्रिपेयर फॉर एन एसे पेपर बाय रीडिंग एंड देन राइटिंग. रीडिंग मैंने 3 दफा बोला है और राइटिंग 6 दफा बोला है. बिकॉज रीडिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? एक पुरानी कोटेशन है कि ओनली अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर. अच्छा रीडर होगा तो अच्छा राइटर बनेगा. सो प्रेपरेशन जो है वो उसकी अच्छी रीडिंग से होगी. और वो अच्छी रीडिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फाइल भी बने. पिछले 5 सालों के हर साल के जो 8-10 टॉपिक है ना, वो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, अगले लेक्चर में मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो बनाया हुआ है. उनमें से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने रिपीट हो रहे हैं. 10 टॉपिक चुन लीजिए और कम से कम 10 ऐसे तो आप लिखिए और वो चेक करवाइए. उससे आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी. कम से कम 10 ऐसे कंप्लीट आपने लिखने हैं. ज्यादा लिख लें, 20 लिख लेंगे तो क्रिएटिविटी खुद ब खुद आने लग जाएगी. ओके, अब इसमें कुछ चीजें हैं, ये मैं छोड़ रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा, आपके साथ शेयर हो जाएगा. ये लैंग्वेज से रिलेटेड है. कोई मुझे इसमें ज्यादा
रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, विविड लैंग्वेज होनी चाहिए, सेंसरी इमेजेस होने चाहिए। सेंसरी इमेजेस क्या होते हैं? जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। स्मेल है, टच है, टेस्ट है, साइट है, हियरिंग है। तो सेंसरी इमेजेस, ये इमोशनल अपील होनी चाहिए अगर आर्गुमेंटेटिव है। ये चीजें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पाया। पिटफॉल को देख लीजिए जरा। It is easy to fall into an incoherent rambling of emotions and senses when writing a descriptive essay. लिखते हुए हम incoherence का शिकार हो सकते हैं। However, you must strive to present an organized and logical description if the reader is to come away the essay with a cogent sense of what it is you are attempting to describe. फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि सर, डू वी हैव एनफ टाइम फॉर ऐसे प्रेपरेशन, लाइक ओनली 4 months आर लेफ्ट। मेरे बेटे 4 months में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 4 साल भी लगे रहे और नहीं हुआ, और 4 महीने लगा के लोग कर गए पूरा CSS क्वालिफाई करके एलोकेशन भी ले लिए। इट डिपेंड्स कि हाउ यू यूटिलाइज दोज 4 months, नंबर 1। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पोटेंशियल। अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है, फिर 4 महीने बहुत हैं। 10 टॉपिक तैयार करने, मैंने आपको कहा कर लेंगे तो आप, और लैंग्वेज आपकी ठीक है तो फिर आप फेल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इफ यू राइट कंप्लीट वेल स्ट्रक्चर्ड, अपनी तरफ से ही कर सकते हैं ना, अपनी तरफ से अच्छी तरह रीड करके, टॉपिक चूज करके, आर्गुमेंट डेवलप करके ऐसे बनाएंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप फेल नहीं होने लगे इंशाल्लाह। 10 टॉपिक्स विच वन सर, ये बताएंगे आपको। मैंने बताया कि विल चूज द टॉपिक्स और उन पे लिखेंगे भी। आपके सामने मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखूंगा भी सही के लिखने की कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें ऐसे बेसिकली पढ़ाना मुश्किल इसलिए है कि इसमें आप थ्योरी बता रहे होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम चीजें टीचर्स बता पाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रैक्टिकली भी शेयर करूं। अब सिंस वी आर नॉट फेस टू फेस क्लासरूम, तो ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि के साथ जवाब भी देता जाऊं और इसको बिल्कुल फेस टू फेस वाला माहौल बनाया जाए। फेस टू फेस क्लासरूम में टाइम ज्यादा होता है, वी कैन यूटिलाइज द बोर्ड, आई कैन राइट, लेकिन मैं अब भी आपके सामने लिखूंगा और कुछ पैराग्राफ स्ट्रक्चर करेंगे उसमें लिख के एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मैंने कहा ना कि हम थीसिस स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस करेंगे, लिख के आपके साथ शेयर करेंगे। तो पिटफॉल ये है कि डिस्क्राइब करते हुए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, इधर उधर निकल जाएं, उससे बचना है। जैसे शुरू में भी ये मैंने कहा था कि आपको इन पिटफॉल से बचना होगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बीइंग फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग, उससे इधर उधर नहीं होना। अब इससे अगला टॉपिक है व्हाट इज नरेटिव ऐसे। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, नरेटिव ऐसे जनरली आता नहीं है। नरेटिव नरेशन होती है, स्टोरी, कहानी जो है वो कोई वाकया आप डिस्क्राइब करते हैं। रिपोर्ट्स नरेटिव होती हैं। रिपोर्ट जो होती है किसी चीज पे लिखी जाती है, उसमें आप नरेट करते हैं कोई वाकया क्या हुआ। जैसे प्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे जर्नलिज्म वाले लोग जो हैं वो करते हैं, तो वो हमारे एसे के पेपर से रिलेटेड नहीं है जनरली, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है एसे राइटिंग के ऊपर, तो इसमें ये टॉपिक है। इसके अंदर जो है, यहाँ पे जो टॉपिक है ना अपना नरेटिव के अंदर आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया जी, 10 topics which ones are like editorials as well. Shajiha Naqvi, I don't understand. Like editorial, if you are saying that reading editorials, yes, reading editorials is always very useful. Reading के लिए, तो बाकी like editorials as well, I don't know what. Could you be more specific, Shajiha? अच्छा,
नो, आई एम सेइंग कि प्रेस रिलीज टाइप है नरेटिव ऐसे, उसमें एडिटोरियल रिपोर्ट्स भी होती हैं, करेक्ट नहीं? एडिटोरियल तो ओपिनियन होता है, एडिटोरियल तो एडिटोरियल बोर्ड का ओपिनियन होता है। जिस चीज में ओपिनियन होगा वो या आर्गुमेंटेटिव होगा या वो एक्सपोजिटरी होगा। इट इज नॉट सॉरी नरेटिव थिंग। नरेशन का मतलब है ये जो कोई वाकया हो गया तो उस पर जो रिपोर्ट है, प्रेस रिपोर्ट है, जैसे मैं कह रहा हूँ वो है। आई होप आई एम क्लियर शजिया जी। Now we move on to what is a thesis statement. So it is usually a single sentence at the end of your first paragraph that presents your argument to the reader. अच्छा, ये generally, लेकिन specifically नहीं है कि end पे ही हो। अपना जो आपका क्या होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके एंड पे ही आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें, ये जरूरी नहीं है। इट मे बी प्लेस्ड इन द मिडल as well, it may be put in the beginning also. So it is not essential that your thesis statement is placed at the end. You may put it anywhere if it is logically and coherently put in the paragraph. अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा था कि होता क्या है, मैंने ओरली आपके साथ शेयर भी की थी थीसिस स्टेटमेंट। क्या था वो? अफगान पीस इन अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हुआ जी? हमजा अली सर, बट यू वाज सेइंग वी कैन यूज फर्स्ट पर्सन इन नरेटिव ऐसे। यस, आई सेड दैट। उसके अलावा तो किसी में नहीं, डिस्क्रिप्टिव में नहीं, नरेटिव में हो सकता है बिल्कुल। आई रियलाइज दैट दिस हैज हैपेंड, लेकिन मैंने बताया कि नरेटिव ऐसे आते नहीं है। तो जनरली ऐसे की टाइप्स हम देख रहे हैं ना, तो नरेटिव भी मैंने डाल दिया इसमें है, और मैंने आपने देखा उसको पे ज्यादा टाइम रुका नहीं मैं। आई जस्ट मूव्ड ऑन टू व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। I hope that satisfies. Now, as I was saying, that a thesis statement tells the reader the direction which your argument is going to take. It means it shows your point of view. It shows your perspective. ये है ना मेरे हाथ में, ये डस्टर है। मैं जिस एंगल से देख रहा हूं, आप मेरे बिल्कुल 180 उसके ऑपोजिट बैठे हुए हैं। जो मुझे यहाँ पे चीज नजर आ रही है, हो सकता है आपको वो चीज यहाँ पे नजर ना आ रही हो। ऐसा ही है। सिमिलरली जो इस तरफ है वो मुझे नहीं पता क्या है, जो इस तरफ है वो मुझे नहीं पता क्या है। मैं जो बताऊंगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए मुझे थीसिस स्टेटमेंट में बताना होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो जैसे कोई एक टॉपिक है, उसके बारे में आप जो कहना चाहते हैं, जिस सिम्त में अपनी गुफ्तगू को, अपने आर्गुमेंट को लेके जाना चाहते हैं, उसको पॉइंट आउट करना थीसिस स्टेटमेंट का काम होता है। और बहुत बेसिकली यूं समझिए कि जैसे कहीं आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास मैप होता है ना, पहले से आपको पता चल जाता है आपने किधर 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 जाना है। अब तो गूगल मैप आ गया, बड़ी आसानी होगी, लेकिन फिर भी आप मैप देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से थीसिस स्टेटमेंट एक काइंड ऑफ पोस्टिंग है, एक पोस्ट है, लगा हुआ है कि जनाब कराची इस तरफ है, ठीक है। यानी आपका आर्गुमेंट किस तरफ लेके चल रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। अब कैसे पता चलता है? आप देखिए, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, टेलीविजन पे हम एंकर्स को मुख्तलिफ को देखते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एक एंकर प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट? पता फौरन पता नहीं चल जाता, क्योंकि उनका वो आर्गुमेंट अगर वो उसके खिलाफ दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये हुकूमत के खिलाफ है। अगर वो बार बार हमेशा हर गलत सही सूरत में हुकूमत की फेवर में बात करता है तो हम कहते हैं कि ये तो हुकूमती टट्टू है। ऐसा है ना। बिल्कुल इसी तरह जब आप लिखते हैं कोई चीज तो उससे आपकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है, और वो सबसे पहले कहां से होगा? वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट से होगा, और होना चाहिए ताकि रीडर को शुरू से अंदाजा हो। आसानी होती है बेसिकली। इट इज जैसे साइन पोस्ट आसान कर देता है ना किस तरफ आपको जाना है, किसी से पूछना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरीके से जब ऐसे पढ़ने लगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट साइन पोस्ट होती है कि आपका आर्गुमेंट किस तरफ डेवलप करना है।
तो इसको लिखने से पहले आप जरा गौर कर लीजिए जो टॉपिक आपने चूज किया है वो किस टाइप का है। जैसे मैंने बताया कि 3 किस्म के ही ऐसे जनरली आप लिखते हैं। एक कौन सा है, शुरू वाला जो हमने बात की, एक्सपोजिटरी है, दूसरा है आर्गुमेंटेटिव और तीसरा है परसुएसिव। तो आपने डिसाइड करना है कि आपका एसे की टाइप कौन सी है। उसके बाद फिर ये डिसाइड करने के बाद मैंने जैसे कहा कि उधर तो नहीं लिखा होता कि ये कौन सी टाइप का एसे, आपने डिसाइड करना है कि टॉपिक कौन सा है, चूज किया और ये यानी जनरली इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे कि वेदर इट्स एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव और व्हाटएवर, देन यू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट दैट टॉपिक, देन यू मेक इट डिबेटेबल क्लेम। डिबेटेबल क्लेम का क्या मतलब है? जिसके ऊपर डिबेट हो सके, जिसके ऊपर बात हो सके। अब ये कह देना कि ये मास्क है, ये मैंने लगा लिया, अब ये कहना कि प्रिवेंशन के लिए मास्क पहनना जरूरी है, तो इसमें कोई डिबेट हो सकती है? It's not debatable. It is essential to wear a mask when you come into the company of people. Is it debatable? No, it is not. So जब आप thesis statement लिख रहे हो तो सोचें कि जो आप बात करने जा रहे हैं, जो आप क्लेम करने जा रहे हैं या लिख लिया आपने, क्या is it debatable enough? And then be specific. Trump, Osama Babar क्या कह रहे हैं? Trump debates on it too, sir. But you were saying Trump debates on it too. Oh yes, yes. Sir, can you please give us some examples of one right and one wrong thesis statement on same topic? Oh yes, I will give you. Yeah, I will give you examples. Don't worry. अभी हम उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए नीचे आई हुई है, ये देख रहे हैं, नॉन डिबेटेबल थीसिस स्टेटमेंट और डिबेटेबल थीसिस, आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है जी, जहां से तो आई थिंक इसको लिखने की प्रैक्टिस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का टाइम हमारा, क्योंकि वी आर गेटिंग क्लोज टू इट एंड आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस नाउ। ये आपको भेज दी जाएगा ये पूरा, इसमें कैसे डेवलप करना है हम इसको इसी से स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ताकि हम उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना लें। सिंस वी हैव जस्ट 7 मिनट्स टू गो, तो उन 7 मिनट में इसको एब्रप्टली एंड करके मैं नहीं जाना चाह रहा। आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ऑल्दो आपके पास ये पहले से होगा, आप इसे पढ़ चुके होंगे, मैं मजीद क्विकली इसको देख के आपके साथ शेयर करके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और लिख के आपके साथ विल मूव अहेड। सो आज का जो हमने जो बात की उसको मैं रिकैप कर देता हूं कि हमने टाइप्स ऑफ एसेस को देखा, कौन से ऐसे बेसिकली है क्या वो हमने देखा, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे अच्छा ऐसे बन सकता है, ये चीजें हमने देखी। और फिर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एसेस को देखा और उनके स्ट्रक्चर को देखा, बिगिनिंग मिडिल एंड को देखा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स कैसे बनेगा, ये डिटेल्स हैं जो हम मजीद अभी करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने एक ओवरऑल व्यू जो था वो सारा एसे के स्ट्रक्चर का भी लिया और फिर थीसिस स्टेटमेंट के बारे में भी एक बुनियादी बात मैंने कर दी है, और इस पे जो एलैबोरेशन है, इसकी एक्सपोजिशन जो है वो विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर इट इज। तो आई वुड नाउ लाइक यू टू come up with any questions that you may have. I'm waiting, my dear students. There are so many, 53 students right now. तो बेटे जहांजेब खान, आपको जैसे मैं कह रहा था ये मिल जाएगा, इसके अंदर ये सामने ही नजर आ रहा है, डिबेटेबल हो और फिर एग्जांपल दी हुई है। अच्छा बेटे, अहमद शाह का क्वेश्चन है कि शुड वी यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और सिंपल?
बेटे अहमद, ये it depends on what you are saying. If your idea is complex, if your idea is is a combination of 2-3 different facts. आइडिया सिंपल भी होता है, आइडिया कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, ऐसा ही है। तो अगर आपका आइडिया कॉम्प्लेक्स होगा तो आप जनरली यू टेंड टू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस। अगर आपका आइडिया सिंपल है, छोटी सी बात है, तो यू विल बी राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस। इसके फिक्र में, इसके यानी टेंशन मत लें कि आपने सेंटेंस लंबा लिखना है, छोटा लिखना है। कोशिश करें कि बहुत लंबा ना हो। आई हैव सीन 1 पैराग्राफ सेंटेंस, एक पैराग्राफ लंबा जुमला जो है वो मैंने देखा हो। तो डेफिनेटली सच सेंटेंसेस क्रिएट कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी। तो उस एम्बिग्विटी को करने के लिए हम कहते हैं छोटा सेंटेंस। छोटे का ये मतलब नहीं है कि सिंपल लिखें, छोटे का मतलब ये है कि 2-3 लाइनों में आपकी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5-6-7 लाइनों का एक लंबा सा कॉमा, सेमीकोलन और डैश और पता नहीं क्या कुछ लगा के एक लंबा सेंटेंस लिखने से बेहतर है कि आप एक शॉर्ट, यानी कंपैरेटिवली शॉर्टर। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर आपका आइडिया कॉम्प्लेक्स है, जो आप आर्गुमेंट कैन देना चाह रहे हैं, उसमें पेचीदगी है, तो डेफिनेटली सेंटेंस लंबा होगा। अगर वो सिंपल सी बात है तो सेंटेंस सिंपल होगा। डोंट वरी अबाउट, ये नहीं होना चाहिए अननेसेसरी लॉन्ग हो जो एम्बिग्विटी क्रिएट करे, लेकिन ये कि इसके बारे में इतना परेशान ना हो। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अच्छा जी, मुस्तफा इमरान साहब का क्वेश्चन है, इफ टॉपिक इज इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कैन अ गुड थीसिस स्टेटमेंट बी the economy of Pakistan has been suffering since many years. However, it shall be observed that by using so and so many years, a bright future can be predicted for Pakistan's economy. It shall be observed. ये जो है ना, ये तो लैंग्वेज का इश्यू है, बाकी ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ लैंग्वेज का क्या है। ओवरऑल इट्स फाइन, इट इज टेलिंग अस, या एक ये उसामा बाबर का ही है ऊपर वाला मैसेज भी, लेट मी सी, सॉरी, वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वाला ऊपर जरा स्क्रॉल कर लूं मैं, ये आप जरा छोड़ देंगे माउस को। हाँ जी, ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जो थीसिस स्टेटमेंट है, इट इज फाइन, लेकिन इसमें फ्यूचर टेंस को निकाल के सिंपली आप प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। However, it is it shall be observed की बजाय कुछ और बेहतर इसको किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इट टेल्स अस कि आप इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की सफरिंग की बात कर रहे हैं जनरली, और कैसे इंप्रूव हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, पर्सपेक्टिव आपका ये है कि ब्राइट फ्यूचर कैसे हो सकता है। ठीक है, ये आगे उसामा का क्वेश्चन है, सर, इफ द vocabulary used in the essay consists of basic and more common words, will the essay be considered ordinary and mediocre essay? नहीं, नहीं। देखिए, इसको मैं फिर मुझे आर्ट फॉर्म जो है ना वो लेनी पड़ती। ग्रे एक कलर है ना, एक आपने पता नहीं 50 शेड्स ऑफ ग्रे नॉवल भी है एक बड़ा मशहूर, एक ग्रे कलर है ना, उसके 50 शेड्स हैं, ठीक है, और एक कलर है। उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सी पेंटिंग्स हैं जो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट होती हैं, और उन दो रंगों को इस्तेमाल करते हुए कितना खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट करता है पेंटर। और एक दूसरा पेंटर है जो जिसने बहुत ज्यादा रंग इस्तेमाल किए हुए होते हैं, लेकिन हमें उसकी बजाय एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही होती है। तो इससे ये नतीजा निकालिए कि हमारे जो रंग हैं उनका, उसमें रंगों को आप समझ लीजिए वोकैबुलरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी मोटी मोटी, वर्बॉस जिसे कहते हैं, या फ्लावरी लैंग्वेज भी लोग कहते हैं। तो उस तरह की वोकैबुलरी आपने यूज कर ली, लेकिन आपके आर्गुमेंट में ताकत नहीं है, तो आप नहीं पास हो सकते।
और उसके बरक्स आपकी वोकैबुलरी बड़ी आम है, सादा है, लेकिन आपने आर्गुमेंट बड़े फोर्सफुली अच्छे एविडेंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको हम मीडियोकर नहीं लेंगे, उसको हम एक अच्छा एस्से समझेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी से मतलब है वास्ट वोकैबुलरी, लॉट ऑफ वर्ड्स शुड बी इन योर माइंड। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जरूरत नहीं है, आप करेंगे, आपने प्रिपेयर करना है अभी जो आपका कंपल्सरी इंग्लिश है उसमें 20 नंबर की वोकैबुलरी है, जिसके लिए आपको बहुत तैयारी करना पड़ती है। तो जब अच्छी वोकैबुलरी आपके दिमाग में होगी ना, खुद ब खुद आ जाती है जहां पे अप्रोप्रिएटली यूज होना होता है। इसके बारे में भी फिक्र मत करें। यस सर, सॉरी, रिटन इन हरी, ओके। Musama Babar, thank you from my side as well. So that was all for today, I suppose. We'll move on in the next lecture to the thesis statement and then other issues related to the structure of the paragraph, paragraph में sentences कैसे डालें और क्या क्या। Any short assignment is to write a thesis statement on any one of the topics that you find here in these. यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे है ना टॉपिक्स, जैसे ये देखिए ग्लोबलाइजेशन वाला, ऊपर 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 वन पे, वन के एंड पे लाओ, पेज वन के एंड पे लाओ, ये बेटे एंड पे, ये छोड़ दो ना, मुझे करने दो, जस्ट लीव इट। ये ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, global warming causes and consequences, democracy and illiteracy do not move together. So the short assignment for you, Sabah Khan, and for all the rest of students is to try to write, ये जो thesis statement का आपके पास आया हुआ है ना नीचे हैंडआउट के अंदर इंफॉर्मेशन, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद इन तीनों को ही, सिर्फ एक्सपोजिटरी एसेस को ही हम फोकस करते हैं, इन तीनों के ऊपर में से किसी एक या दो या तीन, तीनों लिखना चाहे नो प्रॉब्लम, थीसिस स्टेटमेंट अच्छे से डेवलप करके लाइए। फिर हम इसी तरह शेयर करेंगे पूरी क्लास के साथ, आप टाइप कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि अच्छी है, अच्छी नहीं है, कैसे अच्छी हो सकती है। आई होप दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड कीप स्ट्रगलिंग, कीप वर्किंग हार्ड टू succeed inshallah. All the best. See you in the next class.